तो कल हमारा डिस्कशन चल रहा था मेमोरी के ऊपर, ठीक है। तो मेमोरी में हम लोग कल क्या बात कर रहे थे कि बेसिकली वी विल टॉक एवरीथिंग इन रेफरेंस टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और 808 माइक्रो प्रोसेसर का जो हमने थोड़ी स्पेसिफिकेशन लिखे थे कि ये 40 पिन की आईसी है, 16 बिट की एड्रेस बस है, 8 बिट की डेटा बस है और मेमोरी कैपेसिटी 64 केबी है। फिर हमने बताया था कि ये 64 केबी कैसे आता है। तो क्या कंसेप्ट है 64 केबी कैसे आया हमारा? क्वेश्चन इज कि ये हमारा कैसे आया। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी आर डूइंग 2 की पावर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस into number of data lines, we can say like this. Yes please. So 2 की power number of address lines into number of data lines. So here number of address lines are 16, number of address lines are 16, so we can write here 16 and this is 8 bit. Okay, so we are getting it 64k and this 8 bit can be written as b, that is means byte. ठीक है। तो इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट मेमोरी कैपेसिटी फॉर एनी प्रोसेसर। क्लियर है किस तरह से आया? नाउ हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि मेमोरी किस तरीके से हमारी डिजाइन होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कल बात की थी कि वी आर डीलिंग इन हेक्साडेसिमल्स और इन हेक्साडेसिमल नंबर वी आर कंबाइनिंग 4 बिट्स टू क्रिएट ए नंबर। So it means if we are writing here b, that means byte, it means 8 bits. 8 bit means total 8 numbers. So we can combine 4. So it means we will get 2-digit number in hexadecimal for the data. 2-digit hexadecimal number for the data. Now, if we will see for this address bus that is of 16 bit, which means for address bus what we are having, we will be having 4 digits. Okay, 16 bit means combination of 4 combinations, so that means 4 digit. Clear? So now yes, तो अगर हम 16 बिट के एड्रेस बस की बात करते हैं तो मिनिमम एड्रेस हमारा कितना होगा? मिनिमम एड्रेस कितना होगा? ऑल 0 and maximum address all 1. So if we are making this memory like this, so in this memory there are how many locations? 64k. How many locations? 64k, and each location can hold 1 byte. That's why the total memory is 64k byte. It means 64k locations and each location can hold 1 byte, so 64kb is the कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेमोरी। तो ये लोकेशंस हमारी 64 के हैं, हर एक लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा हो सकता है, दैट इज फाइन। और डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन एड्रेस तो कुछ भी नहीं हो सकता, एड्रेस विल बी स्पेसिफाइड। सो एड्रेस कैसे स्पेसिफाई होगा? इस हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होगा, हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होगा। एड्रेस कैसे डिफाइन होगा? जो हमारी 16 बिट की एड्रेस बस है। 16 बिट्स की एड्रेस बस का मिनिमम कितना होगा? 16 टाइम्स 0, 16 टाइम्स 0। और 16 बिट का मैक्सिमम कितना होगा? 16 टाइम्स 1, 16 टाइम्स 1। सो मिनिमम इन हेक्साडेसिमल विल बी 0000h because we are combining 16 zeros. So to make bit as hexadecimal number we have to combine 4 bits. So 4 combination will be 0, next 4 combination again 0. So the minimum address for this memory, that is the starting address, will be 4 times 0 and the maximum address, that is the last address, will be 4 times f, 4 times f, and this h in last indicating that this is a hexadecimal number. H means hexadecimal number. So 4 times f कैसे आया? We are combining 4 1, f आएगा। आप लोग पढ़े हैं नंबर सिस्टम, आएगा नहीं आएगा? So maximum is 4 times f. So now in between we will be having certain other addresses like here it is 000, यहाँ कहीं हमारा मिलेगा 1 2 3 4h, नेक्स्ट हमारा यहाँ कहीं मिलेगा 3895h. Like this we will proceed, and hexadecimal means after 9 it is a, then it is b, then it is c, then d, then e, then f, then 10. In hexadecimal after 9 it is a, not 10.
रिमेंबर इट, ठीक है। तो अब हमने ये बात की टोटल 64 KB मेमोरी की, विच इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेसर। कितना है इसका, 16 बिट की एड्रेस बस है, तो इसकी कैपेसिटी 64 KB आ रही है। बट इट मे बी द केस कि द मेमोरी विच वी आर गोइंग टू इंटरफेस और यूज इज नॉट ऑफ 64 KB, क्योंकि द मैक्सिमम कैपेसिटी इज 64 KB, but we can use 2 KB, 4 KB, it may be any KB size. Maximum capacity is 64K, but we are not bound to use 64 KB. So if we are interfacing, see, in electronics, connecting means interfacing. We generally call it interfacing. Interfacing means there is certain procedure to connect. Interfacing means there is certain procedure. That this pin will be connected to this place, this pin will be connected to this place. So like this, there is a procedure. That's why we all call it interfacing. Clear? Now next page, yeah, here it is add. So suppose if we are having a memory of 16 KB, see, memory will be always in 2 की powers. So either 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power, and maximum capacity here it is 2 की power 6 in 8085 microprocessor. So suppose if we are having a 16 KB memory, again each location can hold 1 byte. This is standard, either it is KB or TB or GB, whatever it is. But if it is of 16K, there it was 64K and here it is 16K. So the number of address lines यहाँ कितनी होंगी? No, address lines, see, हम जो पहले प्रोसेस किए थे उसको रिवर्स कर रहे हैं। 16 KB को आई कैन राइट 2 की पावर कितना 4 into 2 की पावर 10 into 8 bit, that means 2 की पावर 14 into जस्ट रिवर्स जो हमने ये हमारा ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको रिवर्स में किया है हम लोगों ने। तो जो रिवर्स करेंगे then we are getting 2 की पावर 14 into 8 bit. It means here address lines are 14. Here address lines are 14. Clear? So if address lines are 14, then minimum will be 14 times 0. And maximum will be 14 times 1. So what is this in hexadecimal? We will combine from least side. So 4, 4, 4, 2 remaining. ठीक है? So if we have to combine 4, we can take 2 zeros. ठीक है? So this will again become 0, 0, 0, 0 H. And what is the last address? We are combining from this side 4, 4, 4. Here will take 2 zeros. This will come 3 F, 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 H. ठीक है? So you may get a question if we are having a 8 KB memory. See, then how many address lines are there? How many data lines are there? And what is the starting address and what is the last address? So you have to remember now why we have taken this complete 16. हमारा यहाँ 14 था, हमने 16 क्यों किया इसको? क्योंकि we are talking in reference to 8085 and in 8085 there are 16 address lines. That's why we have to make here 16 address lines. That's why we have taken 2 zeros here. ठीक है? सो अब हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा प्रोसेसर है 8085, इससे हमारी डेटा बस निकल रही है जो कि बाई डायरेक्शनल है। ये डेटा बस हमारी इससे कनेक्ट हो गई। सी दिस एरो इन बोथ साइड इंडिकेट्स दिस इज ए बाई डायरेक्शनल वन, है ना। एंड दिस पाइप इंडिकेट्स दैट वी आर हैविंग नंबर ऑफ लाइंस हियर। यहाँ टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी 8, क्योंकि डेटा बस का साइज कितना है 8। एंड हियर इट विल बी फ्रॉम D0 टू, you will write like D0 to D7. D0 least bit and D7 is the most significant bit. So D0 to D7. Similarly, here we will be having the address bus A0 to A15, not 16, but we are starting from 0. So this will become A0 to A15.
16 बिट का एड्रेस बस बना हमारा. नाउ दिस एड्रेस बस इज कनेक्टेड हियर. इसको हम स्ट्रेट रखना है. ये एड्रेस बस हमारी यहाँ कनेक्ट है. ठीक है. नाउ अगर हमारा यहाँ सिर्फ 14 ही होते हैं तो 2 लाइन की कमी पड़ती है. लाइक A0 से A14 तो हमारा यहाँ कनेक्ट हो जाता है. इसको ऊपर लिख लेते हैं. दिस वी गॉट 3FFH. यहां से हमारा यहाँ पे कितना हमारी कैपेसिटी है A0 से A13. तो वी आर हैविंग टोटल 14 एड्रेस लाइंस. तो हमारी इतनी कम कैपेसिटी है तो यहाँ पे जो A0 से A13 तो हमारा कनेक्ट हो जाता. A0 से A13 तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया. A0 से A0, A1 से A1, A2 से A2 लाइक दैट A13 टू. लेकिन यहाँ पे 2 हमारे बचे, A14 एंड. इसका हम लोग क्या करेंगे? These two also we have to connect, वरना इंटरफेसिंग इनकम्प्लीट है. जब तक सारे वायर्स प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है एड्रेस जनरेट नहीं हो पाएगा. एंड अगेन वी हैव टू एंश्योर कि A14 और A15 विल रिमेन ऑलवेज 0, क्योंकि इन स्टार्टिंग एड्रेस ऑल्सो बोथ आर 0 एंड इन लास्ट एड्रेस ऑल्सो both are 0. So we have to connect A14 and A15 in such a way that both are having value 0. And 0 means either we have to connect to ground. See, in electronics क्या है? 0 का मतलब या तो ग्राउंड है, या फिर 0 का मतलब ऑफ है, या फिर 0 का मतलब इसी मतलब समटाइम्स हाई. 0 का मतलब या तो लो होगा. ऐसे तो डिफाइन करते हैं, या तो लो है, या ग्राउंड है, या ऑफ है. और 1 का मतलब या तो ऑन है या 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, लाइक दैट. सो हियर वी आर कनेक्टिंग दिस टू ग्राउंड, सो दिस विल बिकम 0. तो जब भी हम कोई मेमोरी को प्रोसेसर से कनेक्ट करेंगे और अगर सेम कैपेसिटी है, देन देयर इज नो इश्यू, बिकॉज ऑल लाइंस विल बी कनेक्टेड डायरेक्टली. इसमें तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा 8 बिट का है. इसमें कोई कंसर्न है ही नहीं. तो कंसर्न कहां पे है हमारा, जो यहां से इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं. तो इस कनेक्शन के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी मेमोरी कैपेसिटी लेस देन मैक्सिमम कैपेसिटी है, जैसे यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 64 KB, तो अगर 64 KB से लेस कैपेसिटी की हम लगाते हैं तो हमारी बाकी की लाइंस का क्या होगा, ये हम सीखेंगे, आगे कवर करेंगे इसको कि इन बाकी की लाइंस का हम क्या करते हैं. क्योंकि ऐसा तो है नहीं इसे कहीं भी लगा देंगे. देयर विल बी सर्टेन प्रोसीजर टू कनेक्ट. क्लियर? अच्छा, अब हम अगर मेमोरी की ही बात कर रहे हैं तो मेमोरी तो हमारी कई तरह की होती है. ये बात समझ में आ गई बेटा? तो बाकी की लाइंस को हमें अरेंज करना पड़ता है. इसको हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. अब जब हम लोग मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी हमारी कई तरह की होती है. जैसे हम लोग रोम पढ़ते हैं, रैम पढ़ते हैं. फिर रोम का भी क्लासिफिकेशन है, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, पी रोम. ऐसे ही रैम का भी क्लासिफिकेशन है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम. सिमिलरली फिर हम हार्ड डिस्क पे भी चले जाते हैं. देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ मेमोरीज, है ना. जो हार्ड डिस्क है हमारी स्लो मेमोरी है, रैम में हमारी फास्ट मेमोरी है. तो हम लोग मल्टीपल काइंड ऑफ मेमोरीज में जाते हैं. तो अब ये हम जो काम कर रहे हैं ये किस में हो रहा होगा, रोम या रैम से हो रहा होगा. ठीक है, विल कनेक्ट रोम और रैम. तो हम जो इंटरफेसिंग ये पढ़ेंगे, ये कनेक्ट करना जब हम पढ़ेंगे तो ये हम या तो रोम से पढ़ेंगे या रैम से पढ़ेंगे. अब रोम और रैम से जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता है कि चाहे वो रोम, अगर रोम की बात करें तो रोम से ओनली वी कैन रीड द डेटा, और रैम में इधर वी कैन राइट और वी कैन रीड. ठीक है. सो इट विल डिपेंड कि रोम का कनेक्शन कैसे होगा. रोम में हमारे सिर्फ रीड का ऑप्शन अवेलेबल होगा, जबकि रैम में हमारा रीड का ऑप्शन भी होगा और राइट का ऑप्शन भी होगा. लेकिन एड्रेस बस दोनों से कनेक्ट होगी, डेटा बस दोनों से कनेक्ट होगी. इट मींस इफ वी आर कनेक्टिंग समथिंग टू द प्रोसेसर, वी हैव टू कनेक्ट डेटा बस टू कैरी द डेटा, वी हैव टू कनेक्ट एड्रेस बस टू टेल द एड्रेस. एंड एड्रेस इज ऑलवेज इन सीक्वेंस. जैसे हमारे कॉलेज के रूम नंबर्स ही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, है ना. बट जो हमारा, अगर हम बात करते हैं इसका डेटा बस का, सो डेटा कैन बी एनीथिंग. Students in class may be 40 or maybe 30 or 20, but the classroom sequence is same. So similarly here also, जब भी हम कोई प्रोग्राम को लिखेंगे, अब हम बात करते हैं हमें करना क्या है. We have to write certain programs, क्योंकि प्रोसेसर का काम क्या है कि प्रोसेसर का सिंपल सा काम है कि प्रोसेसर हैज टू प्रोसेस समथिंग, and to process something we have to write certain set of instructions, and certain set of instructions is called program, and we are doing some particular task with the help of
program. So in program there are instructions, in instructions there are codes, and these instructions will tell from where you have to take the data, from where you have to send the data, what you have to do with the data, है ना. तो कोई भी इंस्ट्रक्शन, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जब भी हमें कोई टास्क करना है तो इट मींस प्रोसेसर का काम है टू प्रोसेस समथिंग, है ना, टू प्रोसेस सम टास्क, है ना, डिजायर्ड टास्क, सम डिजायर्ड टास्क, या एग्जीक्यूट, कुछ भी कह सकते हैं, टू प्रोसेस और एग्जीक्यूट. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट प्रोग्राम, for that we have to write program, and program will have instructions. ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस जो हमारी होती हैं उसमें हमें पता लगता है कि टास्क हमारा क्या होना है, ठीक है, और उसकी जो टास्क होने की हमारी जो लोकेशंस हैं वो क्या है. लाइक हमारा डेटा कहाँ अवेलेबल है, या फिर हमारा डेटा हमें कहाँ से कैरी करना है, कैरी कहाँ पे डेटा भेजना है. तो इट मींस कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन से शुरू करना पड़ेगा. इंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डेटा कहाँ से आ सकता है. ठीक, तो जब हम डेटा को समझने की बात करें तो डेटा मेमोरी में हो सकता है, डेटा इनपुट डिवाइस से आ सकता है, डेटा को आउटपुट डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं, और डेटा, और देखिए ये हमेशा याद रखिए, प्रोग्राम कहाँ लिखते हैं, मेमोरी में, इनपुट भी कहाँ है, मेमोरी में, आउटपुट भी हम देखेंगे मेमोरी से लेके. इट मींस एवरीथिंग will happen in processor but will be stored in memory. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी होगा वो तो प्रोसेसर में होगा, लेकिन रहेगा कहाँ, मेमोरी में. तो प्रोसेसर क्या करता है, हम लोग जानते हैं, जो बाइट बाय बाइट एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है हमारा उसको फॉलो करता है, वो उसको आगे पढ़ेंगे. तो जब भी हम किसी इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन हैज टू पार्ट्स. एक होता है ऑपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड. इंस्ट्रक्शन हैज टू पार्ट्स. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसके दो पार्ट होते हैं. वन पार्ट इज ऑपकोड एंड अनदर पार्ट इज ऑपरेंड. ऑपकोड मीन्स the task to be performed, the task to be performed. And operand means data to be operated on. You will generally get a question ki what do you understand by opcode and operand. So opcode means basically ऑपरेशन कोड. ऑपकोड को अगर डिटेल में इसको हम लिखना चाहें तो दिस इज बेसिकली ऑपरेशन कोड. ऑपरेशन कोड. तो जनरली इंस्ट्रक्शन हैज टू पार्ट्स, वन इज ऑपकोड, अनदर इज ऑपरेंड. ऑपकोड मींस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड ऑपरेंड मींस डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन. इट मींस कि क्या होना है वो ऑपकोड बताता है, और ऑपकोड का मतलब ऑपरेशन कोड, यानी कि कोड की फॉर्म में होता है. देखिए आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि हम लोग पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में. तो यहां हम लिखेंगे तो ऐड, जब हम समझेंगे और सीखेंगे तो हम लिखेंगे ऐड, जो हमारी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज कहते हैं इसको. लेकिन जब हम प्रोसेसर में इस प्रोग्राम को रन करेंगे अपनी लैब में जाके, देन वी विल राइट ATH. ATH मींस उसका कोड. सो दिस ATH इज द कोड एंड दिस इज कॉल्ड न्यूमोनिक्स. यहाँ पे M साइलेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड निमोनिक्स. M साइलेंट रहेगा, दिस इज कॉल्ड. तो निमोनिक्स कौन सा है, जो हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, लाइक ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. बट उसका जो कोड है, यानी कि जब हम प्रोसेसर में रन करेंगे उसको, देन वी आर राइटिंग ATH, दैट मींस इट्स कोड. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कोड से बात कर रहे हैं. ठीक, और ऑपरेंड का मतलब ये काम कहाँ होना है. अब मान लीजिए अगर ऑप कोड में नॉट है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट है या नॉट है, उसका मतलब एक ही हमारा डेटा रहेगा, यानी यहां पर एक ऑपरेंड डिफाइन करना पड़ेगा. लेकिन अगर मान लीजिए यहां एडिशन है तो दो डिफाइन करने पड़ेंगे. तो मैक्सिमम जहां तक है दो तक ही जाएंगे हम लोग. बात समझ में आ रही है नहीं.
भाई ऑपकोड के बेसिस पे हम लोग देखते हैं ऑपरेंड कितने हैं। मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट करने का है तो एक ही ऑपरेंड होगा, एडिशन का है तो 2 ऑपरेंड होंगे। तो जनरली हमारी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई ऑपरेंड चाहिए ही नहीं, यानी कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो प्रोसेसर की इंटरनल एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यानी इंस्ट्रक्शन कैन हैव ईदर ओनली ऑपकोड, और इट कैन हैव ऑपकोड एंड 1 ऑपरेंड, or it can have opcode and operand 1 and operand 2. There may be generally 3 conditions. Clear? तो अब जब हम ऑपरेंड की बात करेंगे तो ऑपरेंड क्या हो सकता है? मेमोरी हो सकती है, या इनपुट डिवाइस हो सकती है, या आउटपुट डिवाइस से डेटा ले रहे हैं वो हो सकता है। और इनपुट आउटपुट मेमोरी का क्या होगा ऑपरेंड? ऑपरेंड क्या होगा इनपुट आउटपुट या मेमोरी का? एड्रेस। ऑपरेंड या तो एड्रेस होगा, या डेटा होगा, या रजिस्टर होगा। रिमेंबर इट कि ऑपरेंड जो है, ऑपरेंड विल बी ईदर एड्रेस और डेटा और रजिस्टर। ऑपरेंड हमेशा या तो एड्रेस होगा, या डेटा होगा, या रजिस्टर होगा। एड्रेस का मतलब कि वी आर डिफाइनिंग फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक द डेटा। डेटा मींस वी आर डायरेक्टली गिविंग द डेटा। जैसे कि मैंने कह दिया कि लोकेशन है मेरी 1520H, वहां का डेटा हमें यूज करना है, तो 1520H पे कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज वी आर कॉलिंग थ्रू एड्रेस। बट एक मैं कह रहा हूं कि मुझे 15 यूज करना है, तो मेमोरी से कोई मतलब ही नहीं रहा जब मैं डायरेक्ट डेटा दे रहा हूं। और तीसरा ये है रजिस्टर। रजिस्टर जो हमारे प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम लोग जो है ऑपरेंड को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब जब हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, मेमोरी की बात कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं, तो मेमोरी तो क्लियर हो गई कि मेमोरी का एड्रेस है। और अगर हम 8085 के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो जो एड्रेस है हमारा वो क्या होगा? 2345H ऐसे कुछ होगा। इट मींस देयर विल बी 4 डिजिट वैल्यू। और अगर कोई डेटा होगा हमारा तो वो दो डिजिट का होगा, 2 डिजिट। एड्रेस विल बी ऑफ 4 डिजिट, दिस इज क्लियर टू अस। डेटा विल बी ऑफ 2 डिजिट, दिस इज क्लियर टू अस। नाउ थोड़ा सा हम रजिस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम अब हमारा फिर से मैं वही कहूंगा कि हमारा डिस्कशन है इन रेफरेंस टू 8085। See, although in syllabus we are starting 8085 in second unit, but in unit 1 we have to cover basics, and basics are also covered with the help of 8085 microprocessor. बेसिक्स को समझने के लिए हम रेफरेंस किसका लेके चलेंगे? 8085 का। वो हमारे लिए सबसे इजी तरीका है समझने का। तो अगर हम इसके रजिस्टर्स की बात करें तो सबसे पहला जो सबसे अहम रजिस्टर है इसके अंदर होता है ए, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। ए, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे रहते हैं बी, सी, डी, ई, एच और एल। इसको हम देखिए थोड़ा थोड़ा कवर करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए हम आज इतना ही डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपको कवर होता रहे। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा पैटर्न, तो जल्दी रहता है समझने में। अदरवाइज अगर आज ही सारा कवर कर देंगे तो इट विल बिकम वेरी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ए इज द एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर हमारा सबसे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्यूमुलेटर के लिए एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, इसमें जोड़िए इन केस ऑफ ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, the result is stored in accumulator. Also, one of the operand is always accumulator. In case of all the arithmetic and logical instructions, the result is stored in accumulator. Also, one of the operand is always accumulator.
इट मीन्स अगर हम कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल टास्क करेंगे, अरिथमेटिक मीन्स एडिशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लॉजिकल मीन्स एंड और नॉट। सो जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस इस तरीके की हैं, उन सभी में एक हमारा ऑपरेंड एक्यूमुलेटर रहेगा और रिजल्ट भी हमारा एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। चलिए, तो ये हमारा 8 बिट का रजिस्टर होता है। दिस इज ऑफ 8 बिट रजिस्टर है हमारा। ये सब भी हमारे 8 बिट के हैं, इसीलिए इसके आगे ब्रैकेट में लिख रहे हैं 8 का मतलब दिस इज ऑफ 1 बाइट और वी कैन से 8 बिट। अब हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है? क्योंकि प्रोसेसर हमारा 8 बिट का है। देखिए प्रोसेसर कितने बिट का है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डेटा बस। तो हमारा प्रोसेसर कितने बिट का है? 8 बिट प्रोसेसर है, यानी इट कैन, प्रोसेसर का कितने बिट का है, इट मींस हाउ मच डेटा इट कैन प्रोसेस एट ए टाइम। एड्रेस बस से मतलब नहीं है इसका। तो हमारा 8 बिट का प्रोसेसर है, तो जितने रजिस्टर्स हैं वो ज्यादातर 8 बिट के होंगे। 16 बिट का प्रोसेसर है तो रजिस्टर 16 बिट के होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर इट। अब अगर हमें 8 बिट का ऑपरेशन करना है तो हम किसी भी रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इनमें से कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं। बट इन केस वी रिक्वायर टू डू ए 16 बिट ऑपरेशन, in case we require to do the 16-bit operation, we can use these combinations, and these are standard combinations. It means you can use BC, you can use DE, and you can use HL. You can't write CB, you can't write ED, you can't write BE. These are standard combinations, that is BC, DE, and HL, which can be used to execute any operation of 16 bit. Got it? तो 8 और 8 16 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 8 और 8 16 हो गया। और एक्यूमुलेटर 8 बिट है, लेकिन अब ये ऐसा नहीं इसको इससे जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 16 बिट के लिए कौन से कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं, या कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, नॉट इन सेमेस्टर एग्जाम्स बट इट कैन बी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि वो बता देंगे कौन सा जोड़ा आपका इसमें गलत है, कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा गलत है। तो यू हैव टू रिमेंबर इट कि वी कैन मेक ओनली BCD एंड नाउ दिस HL plays an important role। अब इसको समझते हैं क्या है इंपॉर्टेंट रोल का मतलब, बियॉन्ड दिस जनरल रोल। BCD HL तो है ही है, H और L तो अलग अलग है, उसके अलावा भी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। HL का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, देखिए H और L में कंबाइन होकर बनेगा 16 बिट, और ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगा। अगर हमारे पास 16 बिट का डेटा है तो ये एड्रेस भी हो सकता है, अब क्योंकि एड्रेस हमारा कितना है 16 बिट, तो 16 बिट का डेटा हमारा एड्रेस भी हो सकता है, और 16 बिट का जो डेटा है वो हमारा डेटा भी हो सकता है। सो नाउ देयर मे बी ए कंफ्यूजन कि ये 16 बिट का डेटा हमारा डेटा है एड्रेस है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक टर्म हम यूज करते हैं मेमोरी पॉइंटर। ये क्वेश्चन कई बार आता है, मच चांसेस रहते हैं कि हर जगह आपको मिले। ठीक, इसको डिनोट करते हैं हम M से, डिनोटेड बाई M, और इसकी जो डेफिनेशन है, मेमोरी पॉइंटर होल्ड्स द कंटेंट ऑफ memory location denoted by HL register pair. Memory pointer holds the content of memory location denoted by HL register pair. अब देखिए HL, BC और DE ये तीनों पेयर बन गए ना, BC, DE, HL तो अलग अलग थे, बट जब इनको कंबाइन किया है तो BC, DE, HL तीनों हमारे पेयर बन गए, तो उसको हम रजिस्टर पेयर बोलते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है कि जो HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस है उस पे जो डेटा है दैट इज इंटीग्रेटेड बाय M। समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। मान लीजिए हमारा मेमोरी है, अब ब्लॉक्स हम बड़े बनाएंगे,
बड़े ब्लॉक्स क्यों बना रहे हैं? कुछ डेटा हमें रखना है वहां पे। लोकेशंस तो बहुत सारी हैं, बट हमें बड़े ब्लॉक्स बनाने हैं। मिनिमम हमारा 00000H है, अगर 64 केबी की मेमोरी लगी हुई है, यानी स्टैंडर्ड मैक्सिमम कैपेसिटी कनेक्टेड है 8085 के साथ। मैक्सिमम हमारा FFFFH है, ठीक है। बीच में कहीं मान लीजिए यहाँ हमारा 25 रखा हुआ है, और यहाँ का जो एड्रेस है दैट इज 2E05। ये कुछ भी हो सकता है, देखिए, दिस कैन बी एनी 4 डिजिट, बस इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा। सिमिलरली इसके बीच में लिखोगे तो 1 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें उस रेंज के बीच का ही डेटा रखना है। और जब भी, अब देखिए यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो अगर यहाँ का एड्रेस 2E05 है और यहाँ पे 25 रखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर मैं इसको HL में डाल दूं, अगर मैं 2E05 को HL में डाल दूं, इट मींस HL में डालने का मतलब अगर मैं H में रख दूं 2E और L में रख दूं, इसका उल्टा नहीं हो सकता। यानी H में 05 और L में 2E नहीं कर सकते, हायर साइड हायर तरफ, क्योंकि हमारा युग्म है दैट इज HL, जो पेयर है दैट इज HL। तो H में 2E रख दें और L में 05 रख दें, तो ऑटोमेटिकली M में 25 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली M में 25 आ जाए, ठीक। यानी कि अगर हम एड्रेस हमारा 16 बिट का है और उसको HL में रख दें, तो M में ऑटोमेटिकली वहां का डेटा आ जाएगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली HL। BC और DE में ये काम नहीं हो सकता, इसीलिए ये स्पेशल फंक्शन है HL का। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो, ठीक। HL को हम रखने के बाद तो हमारा HL का एक स्पेशल फंक्शन निकल के आया कि दिस इज यूज्ड एज ए मेमोरी पॉइंटर, और A का स्पेशल फंक्शन है इट इज यूज्ड एज एन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर होल्ड्स द रिजल्ट या फिर वन ऑफ द ऑपरेंड इन केस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब इतना सब डिस्कशन के बाद हमें बेसिक तो समझ में आ गया सारा। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, है ना, क्योंकि जब तक इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएगी तब तक हम आगे फिर समझ ही नहीं पाएंगे। सो इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर अस, ठीक है। तो और इंस्ट्रक्शंस जब भी हम पढ़ेंगे तो हम एक साथ नहीं कवर कर पाएंगे, ना आप सीख पाओगे। तो ब्रेक्स में चलेंगे, रोज की 3-4 इंस्ट्रक्शन समझ ली, तो उससे मुझे लगता है बेटर रहेगा कवर कर पाना, ठीक है। तो अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात थोड़ी सी प्रोसेसर की करें, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो हम इंस्ट्रक्शंस की बात अगर शुरू करेंगे, अब इंस्ट्रक्शंस हमारी कई टाइप की हो सकती हैं। इंस्ट्रक्शंस हमारी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती है, या अरिथमेटिक हो सकती है, या लॉजिकल हो सकती है, या ब्रांचिंग हो सकती है, और लास्ट होता है मशीन कंट्रोल। जनरली हम ये 5 टाइप की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं: डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस और मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। डेटा ट्रांसफर का मतलब वी आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी, मेमोरी टू प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस टू प्रोसेसर, या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस टू प्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइस, ठीक है। देयर मे बी एनी कॉम्बिनेशन, जो हमने स्टार्टिंग में एरो बना के दिखाया था। अरिथमेटिक मींस वी आर एग्जीक्यूटिंग सर्टेन ऑपरेशन। Arithmetic means addition, subtraction, multiplication, division. Logical means it may be ending, not, nor, ठीक है। And branching means कि in our program we are jumping from this place to that place, ऐसे करके जो मूव करते हैं ना प्रोग्राम के अंदर, कि 4 स्टेप वापस चले गए या 3 स्टेप आगे निकल गए, या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में चले गए, उसके लिए ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस आती हैं। एंड लास्ट मशीन कंट्रोल है, इट मींस जो प्रोसेसर की इंटरनल एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे प्रोग्राम को एंड करना है तो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन होती है। सो दैट इज ऑफ मशीन कंट्रोल। चलिए, तो अब जब ये इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे, उससे पहले कुछ चीजें याद रखने की हो गई। पहला ये कि ट्रांसफर रजिस्टर से रजिस्टर में हो सकता है, कोई भी काम रजिस्टर से रजिस्टर हो सकता है, कोई भी काम रजिस्टर से मेमोरी हो सकता है,
देखिए R स्टैंड्स फॉर रजिस्टर, M स्टैंड्स फॉर मेमोरी, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई भी काम मेमोरी से मेमोरी नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन में मेमोरी टू मेमोरी कुछ ऑपरेशन नहीं हो सकता, इट विल बी इधर फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, या डेटा भी हो सकता है डायरेक्टली, बट मेमोरी टू मेमोरी कोई भी हमारा एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। ये कुछ चीजें हमें याद रखनी होती हैं, ठीक। अब अगर हम डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शन को एक एक करके सभी की इंस्ट्रक्शन समझ के देखते हैं थोड़ी थोड़ी, जिससे हमें थोड़ा सा याद रहे। जैसे कि हमारा डेटा ट्रांसफर में इंस्ट्रक्शन होती है, डेटा ट्रांसफर की हमारी एक इंस्ट्रक्शन होती है मूव, MOV, MOV, और इसके आगे हम लिख सकते हैं RD, RS। अब कुछ चीजें आप याद कर लेंगे तो इंस्ट्रक्शन याद होती चली जाएंगी। RS का मतलब सोर्स रजिस्टर, RD का मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो RS और RD कुछ भी हो सकते हैं, A, B, C, D, E, H, L, उनमें से कुछ भी हो सकता है, या M भी हो सकता है। M को हम रजिस्टर नहीं मान सकते, बट इट इज ए मेमोरी पॉइंटर। सो इन दीज प्लेसेस इट कैन बी A, B, C, D, E, H, L या M, कुछ भी हो सकता है। देखिए थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो दीज आर रजिस्टर्स, दिस इज नॉट ए रजिस्टर, बट दिस इज ए मेमोरी पॉइंटर एंड कैन बी यूज्ड एज ए रजिस्टर। और ये हमेशा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि डेस्टिनेशन कैन नेवर बी मेमोरी, डेटा, सॉरी, डेस्टिनेशन कैन नेवर बी डेटा। दो चीजें हमें याद रखनी है, पहली ये कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मेमोरी नहीं हो सकते, बोथ कैन नॉट बी मेमोरी। दूसरा ये कि डेस्टिनेशन कैन नेवर बी डेटा, क्योंकि डेटा में कुछ थोड़ी ना पहुंच जाएगा, यानी कि दोनों मेमोरी नहीं हो सकते, पहला केस। दूसरा ये कि डेस्टिनेशन कभी भी डेटा नहीं हो सकता है। गॉट इट? चलिए, अब इसी इंस्ट्रक्शन, ये हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। जनरल मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग विद आर, बट अगर इसकी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन लिखें तो वी कैन राइट मूव B, C, लिख सकते हैं। सो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन डज, दिस विल कॉपी द कंटेंट ऑफ C इनटू B। तो इसका नाम भले ही मूव है, बट ये करेगी क्या? कॉपी। इट मीन्स द डेटा इन सोर्स विल रिमेन एज इट इज। जैसे कि अगर मेरा C में 5 था तो B में 5 आ जाएगा, लेकिन C में भी 5 ही रहेगा। It means it is not like it is shifting the data from C to B. It means it is just copying the data, but name is moved. और हमेशा ध्यान रखिएगा, सोर्स उस तरफ है, डेस्टिनेशन इस तरफ है, यानी ऐसा नहीं है कि आप B से C में कर दो, C से B में आएगा। ऐसे एक सेकंड इंस्ट्रक्शन होती है MBI, R, 8-bit डेटा। अब कुछ चीजें हमें याद रखने की हैं, फिर एक नया टर्म आ गया याद रखने का। अगर किसी इंस्ट्रक्शन में I आ रहा है, अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में I आ रहा है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप याद रखेंगे तो आपको कुछ आसान सा लगेगा बाद में। अगर किसी इंस्ट्रक्शन में I आ रहा है, बाद में, बीच में नहीं, बाद में, क्योंकि बीच में तो उसके नाम की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी इंस्ट्रक्शन में बाद में I आ रहा है, इट मीन्स उसके अंदर डेटा होगा। अगर किसी इंस्ट्रक्शन में I आ रहा है तो उसके अंदर डेटा होगा, और अगर किसी इंस्ट्रक्शन में X आ रहा है, अगर किसी इंस्ट्रक्शन में X आ रहा है तो उसके अंदर 16 बिट का ऑपरेशन होगा, और अगर किसी के अंदर X और I दोनों आ रहे हैं तो 16 बिट का डेटा होगा। क्या क्या कहा मैंने? अगर किसी इंस्ट्रक्शन में I है तो उसके अंदर डेफिनेटली डेटा होगा, अगर X है तो 16 बिट ऑपरेशन होगा, और अगर X I दोनों हैं तो 16 बिट डेटा होगा। यहां क्या है? I है, तो यानी इसमें डेफिनेटली डेटा का चक्कर आएगा, यानी कि पहली वाली इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो गलत हो जाएगी। तो इसका एक्चुअल अगर हम लिखें इसका एग्जांपल तो क्या होगा? MBI D, 52
H। तो जो 52H डेटा है वो कहां चला जाएगा, D में। और इसका उल्टा नहीं कर सकते, अगर आपको डेटा इधर आ जाएगा, मैंने आपसे कहा डेस्टिनेशन कैन नॉट बी डेटा। एक इंस्ट्रक्शन और लिखते हैं ऐसी की, LXI RP, 16 बिट डेटा। ये सारी मूव की इंस्ट्रक्शंस ही हैं पहले कैटेगरी में। LXI RP, 16 बिट डेटा लिखा। LXI X भी आ रहा है यानी 16 बिट का होगा, I भी आ रहा है यानी डेटा होगा। तो इसीलिए 16 बिट डेटा है। अब जब 16 बिट डेटा है तो बेटा डेस्टिनेशन भी 16 बिट का होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट और आ गया ऐड करने का कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन शुड बी ऑफ सेम साइज। सोर्स एंड डेस्टिनेशन शुड बी ऑफ सेम साइज। तो अगर हमारे यहाँ 16 बिट का डेटा है तो यहाँ 16 बिट का रजिस्टर आएगा, और 16 बिट का रजिस्टर हमारा क्या होता है, या तो ये BC होता है, या DE होता है, या HL होता है। और कभी भी हम कंप्लीट नहीं लिखते हैं इसमें, हम हमेशा हायर वाले को लिखेंगे, यानी या तो B लिखेंगे या D लिखेंगे या फिर H लिखेंगे। और इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि B का मतलब BC है, D का मतलब DE और H का मतलब HL है। इट मींस एग्जाम्पल इसका लिखें तो क्या हो जाएगा, LXI B, 2351H। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, BC में आएगा 2351, यानी B में आएगा 23 और C में आएगा 51, लोअर में लोअर और अपर में। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन आपको बहुत मिलेंगे पढ़ने के लिए प्रोग्राम में, सबसे बेसिक है। तो तीनों में डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये तीनों हमारी डेटा ट्रांसफर कैटेगरी की इंस्ट्रक्शंस हैं।